So what I was saying that Dr. Juhi has already started linear transformation, and you now know what is the meaning of vector space. Vector space is a set where the elements are called vector space. It is defined over a field that is either R or C. Please off your mic, otherwise I will take the right back. And the vectors and scalars are element of field, and field is here in this course either C or R. And vectors satisfy certain these vectors and scalars satisfy certain 9 10 properties. I hope you are familiar about all these things. You have seen various examples of vector space. Now, in remaining lecture series, particularly in my lecture series, I will I will remain inside this Rn. Remember, so this is a vector space. And what is the elements of Rn? Slide is visible. Yes, sir. Okay. So what is Rn? Rn is the collection of all n tuples, these vectors. Okay. And when I say vector, that means by default it is a column vector, remember. Okay. Here each xi belongs to R. So when I say Rn, that means field is also R. Hmm? Until I say that field is some different thing. So by default, when we say Rn, that means it is collection of all such vectors. Okay, vectors means column vectors, and field is R, means scalars are also R. Okay, so we focus on this vector, and you know that this is a vector space. How can you add two vectors, means two elements, and how can you multiply a scalar in a vector that you know? So if you have two vectors, x and y, where x is what? X is this x1 plus x1 x2 xn, and y is what? Y1 y2 yn, then some. This is usual things. These are usual things. You know that how can you add two vectors? How can you multiply a scalar in a vector? So if alpha is scalar, and scalar from where it is coming? Remember R. ये भी एक real number है. So alpha times x1 x2 xn, and this is equal to alpha x1 alpha x2 and alpha xn. Remember, this is called vector addition, this is called scalar multiplication. Okay, but more than these keywords, vector addition, scalar multiplication, the important thing is the following. You always must remember that you are inside a vector space. आपको हमेशा याद कर रखना होगा कि आप एक वेक्टर स्पेस के अंदर हैं, और वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, you must remember all these properties, because sometimes we will be in need of those properties. So let us pause for this for a week at least. This the discussion that you were doing with Dr. Juhi on linear transformations, and let us start some more basic thing, and then uh, the things those we will the things we will start in this lecture will be required in coming weeks, particularly to define particular subspaces that you are reading in terms of linear transformations. Okay, so the keyword that we will learn in this lecture is RREF. Okay, this is the main keyword, and this is called row row reduced echelon form. Row
reduced echelon form. Okay, so I hope that you have done this in 106 also. Have you done this in 106? प्रशांत सर ने नो पढ़ाया सर, है इस विषय में? सर अभी स्टार्ट हुआ है सर ये। Okay, okay. So let us spend some time here also because it is an important form. इस फॉर्म का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे अभी अगले 2-3 वीक्स में, particularly to find basis of subspaces, how you can find intersection of two subspaces. Okay, so we will use this form, and or so there are two keywords, ref and ref. So many times we will use this is sufficient only. Ref means row echelon form. Okay, and RREF is so much beautiful form of a matrix that MATLAB recognize this as a command. There is inbuilt function in MATLAB with the name RREF, remember. So RREF बहुत important है, इसलिए MATLAB भी इसको recognize करता है इसी नाम से. RREF is a very powerful inbuilt function in MATLAB. What is RREF and how we can calculate? Let us see that how we can calculate this first, and then I will write its more precise definition on slide, and then we will see that how can we use this REF or RREF. Okay, so let us start with the example. So these forms are associated with the matrix. So RREF or REF means you have to write a given matrix in a particular form by using some elementary operations, and these elementary operations are called actually row elementary operations. Okay, so let us take one example, and you can take I hope you remember that there are three types of row operations in a matrix. Type 1. Type 1 means you can exchange ith and jth row. Type 2. Type 2 means Ri can be added, means ith row can be added by alpha times rj row, and then replace this by new ri. Means what you are doing here, you are adding alpha times rj in the row I. You are replacing ri, ith row of a matrix, by this operation, right hand side operation, remember. Okay, so is it clear what we are doing? ith row में
अल्फा टाइम्स आरजे रो को हम ऐड कर रहे हैं और ith रो को ही रिप्लेस कर रहे हैं इस नई नई रो से. So this is type 2. And what is type 3? Means alpha times ri, means ith रो में ही अल्फा का मल्टीप्लाई करो और ri से रिप्लेस कर दो. Here alpha cannot be 0. If you take here alpha 0, then there is no harm mathematically. What you are doing, you are replacing rith row by ith row. You are replacing ith row by ith row. Here you cannot take alpha 0, because if you take alpha 0, that means what in type 3? That means what? This complete operation will give you 0 row. That you cannot do. So remember these three row operations in this way only, because I will say many times apply type 1. इनका तो टाइप 1 का मतलब क्या है हमारे लिए कि वी विल एक्सचेंज 2 रोज. टाइप 2 का मतलब क्या है कि किसी एक रो में दूसरी एक रो का कुछ मल्टीप्लाई ऐड किया. और टाइप 3 का क्या मतलब है, किसी एक रो में कुछ स्केलर मल्टीप्लाई किया. So type 1, type 2, type 3. So these are three basic row operations. These are called elementary row operations in a matrix, and we will use these three row operations to obtain our REF and RREF. So let us start with the example. So suppose A is this matrix. Let me take some rectangular matrix. 1 3 3 2 2 6 9 7 -1 -3 3 and 4. Suppose you have this matrix. This is 3 cross 4, 3 rows and 4 columns. So how can we find REF and RREF? Learn the algorithm first. पहले algorithm learn करो, उसके बाद I will write the precise definition of these two forms. Okay. So क्या करते हैं सबसे पहले? And see, I hope till now you have done this elimination, or you have used these row operations in square matrices. Okay. So focus that this is rectangular. ध्यान रहे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और what we are doing here, I am trying to explain how can you obtain REF or RREF for any matrix. So ये जो दो फॉर्म है REF और RREF, याद रहे कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये एग्जिस्ट करती है. जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो, इन्वर्टिबल हो, या किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म का हो. किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो कुछ भी स्क्वायर हो. नाउ क्वेश्चन इज, ये निकालना कैसे है, या ये जो एज आई सेड दैट RREF इज ए इनबिल्ट फंक्शन इन मैटलैब. वो कंप्यूटर निकालता कैसे है, या आपको भी कैसे निकालना है, आइदर कॉपी पे या आपको अपना कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसको आप कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे. सो लुक एट वन एलिमेंट. सबसे पहले क्या करना है कि वन एलिमेंट को ध्यान से देखना है. इफ इट इज नॉन जीरो, सो व्हाट इज वन एलिमेंट? इट इज 1. इफ इट इज नॉन जीरो, मेक इट पिवोट. कीवर्ड क्या है? पिवोट. ओके. अभी क्या करना है हमको कि यदि, रिमेंबर, पिवोट कैन नॉट बी जीरो. पिवोट जीरो नहीं हो सकता. मैंने क्या बोला कि लुक एट वन एलिमेंट. इफ इट इज नॉन जीरो, मेक इट पिवोट. यदि वो नॉन जीरो है तो ही उसको पिवोट बनाना है. जीरो को पिवोट नहीं बना सकते. सो उसके बाद क्या करना है?
कि पिवोट रो कॉलम में, सो जिस कॉलम में पिवोट हो दैट कॉलम इज कॉल्ड पिवोट कॉलम, और जिस रो में पिवोट है दैट रो इज कॉल्ड पिवोट रो. So here in this iteration our first row is pivot row and first column is pivot column. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. So यस हमको सर। करना क्या है अभी कि पिवोट कॉलम में पिवोट के नीचे हमको जीरो बनाना है बस. और करना क्या है, जैसे कि ये जीरो हमको बनाना है, फॉर एग्जांपल हमको ये जीरो बनाना है. ठीक है, देखो एक चीज का प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसे रैंडमली हम जीरो नहीं बनाएंगे. हमेशा याद रखें कि बिकॉज सी व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ 106, अल्टीमेटली 102 102 जो एम ए CDA 102 है, इसमें हम थ्योरी ज्यादा कवर करते हैं, लेकिन अल्टीमेट एम इज 106. 106 में क्या करते हैं, 106 में हमको कोड लिखना है एक्चुअली ना. आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप अपनी चीजों को कंप्यूटर को समझा सकते हैं. ओके, लैंग्वेज इज योर चॉइस, आइदर यू कैन यूज मैटलैब और पाइथन और आर. ओके, बट मेन थिंग इज एल्गोरिथम. और जब हम एल्गोरिथम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी आर डूइंग ऑल स्टेप्स सिस्टमेटिकली, रैंडमली कुछ नहीं कर रहे हम. ऐसा कुछ नहीं कि कहीं भी पिवोट बना दिया उसके बाद कोई भी प्रोसीजर लगा दिया जीरो बनाने के लिए, नहीं. और प्रोसीजर मस्ट बी फिक्स्ड, क्योंकि एक प्रोसीजर फिक्स्ड होगा तभी तो हम अपने कंप्यूटर को समझा पाएंगे कि ओके दिस इज माय प्रोसीजर और एल्गोरिथम, यू फॉलो द स्टेप्स इन दिस वे. तो करना क्या है कि अभी हमको जीरो बनाना है, देखो यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमको जीरो बनाना है. सो इस टू को हमको जीरो बनाना है. तो करना क्या है कि पिवोट रो में ही मल्टीप्लाई करना है किसी चीज का, और पिवोट रो को यू मल्टीप्लाई समथिंग इन पिवोट रो, और पिवोट रो को इसमें ऐड कर दीजिए सेकंड रो में. याद रहे, एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर. टू को हमको जीरो बनाना है तो कैसे बनाना है, बाई अप्लाइंग टाइप टू रो ऑपरेशन. टाइप टू रो ऑपरेशन क्या है कि ith रो में, मतलब कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सेकंड रो में फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो मींस पिवोट रो, फर्स्ट रो का कुछ मल्टीपल ऐड कीजिए सेकंड रो में, ताकि यहाँ पे जीरो बन जाए. सो व्हाट इज दैट मल्टीपल, कैन यू टेल मी? -2. -2. See, -2, all these numbers are called multipliers. See, and multiplier के लिए एक सीधा फॉर्मूला है. देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वी आर ट्राइंग टू रीड दिस इन ए सिस्टमेटिक वे, मतलब कि एल्गोरिथमिक वे, सो दैट यू कैन इंस्ट्रक्ट योर कंप्यूटर. सो मल्टीप्लायर जब भी निकालते हैं, मल्टीप्लायर क्या होता है कि जिस चीज को, जिस जिस स्केलर को आपको पिवोट रो में मल्टीप्लाई करना है जीरो क्रिएट करने के लिए, दैट नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर इज एंड माइनस ऑफ एंट्री टू बी एलिमिनेटेड, एंट्री टू बी एलिमिनेटेड, जिसको तुमको जीरो बनाना है वो नंबर, डिवाइडेड बाय पिवोट. देखो हमारा पिवोट क्या था, 1, और जीरो किसको तुमको बनाना है, 2 को. सो 2/1 और उसका माइनस, सो -2. So -2 is multiplier. That means you multiply this multiplier in the pivot row and add in a row where you are creating zero. Okay. So पहले वो सारी रो जो पिवोट रो तक की सारी रो तो ऐसी ही कॉपी कर दो. अभी यहाँ पे जीरो बनाना है हमको 2 की जगह, तो जीरो बन गया. और उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा. What we are doing, we are replacing this by r2 minus 2 times r1. This operation we are doing. So however, such practice is not good to write all these operations in the side of matrix, but
Okay, I am writing for just to make the things more clear to you. So R2 minus 2R1 that I am doing. यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 3. अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है. ये कितना था 1 था और हमको यहाँ पे 0 बनाना है बस. ठीक है. करंट पिवोट, जो भी पिवोट हम बनाएंगे यू चूज करेंगे, उस पिवोट के नीचे पिवोट कॉलम में 0 बनाना है, बस ये याद रखना है. और बनाना कैसे है, बाय फाइंडिंग मल्टीप्लायर्स, कि पिवोट रो में कुछ मल्टीप्लाई करके नीचे की रोज में ऐड कर दो. और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको कैसे निकालेंगे, उसका सीधा एक फॉर्मूला है, माइनस ऑफ एंट्री टू बी एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय पिवोट. तो यहां पे क्या आएगा, अभी अभी इस 0 बनाने के लिए मल्टीप्लायर क्या होगा, व्हाट विल बी द मल्टीप्लायर टू क्रिएट 0 एट 3 1 पोजीशन, प्लस R1. 1. गुड. कैसे निकाला, एंट्री टू बी एलिमिनेटेड क्या है सर -1. -1 डिवाइडेड बाय पिवोट क्या है 1. So it is -1 and then you have to take one more negative. So 1. So multiply the row 1 by 1 and add in row 3. 0, 0, उसके बाद 6 और 6. ठीक है, क्लियर. अभी इसके Yes. बाद नाउ आवर फर्स्ट इटरेशन वी हैव कंप्लीटेड. इसके बाद क्या करना है, हमको देखो पिवोट हमको कोशिश करना है कि डायगोनल पोजीशन पे ही ढूंढे, मतलब कि 1 1 2 2 3 3 3 4 4 ऐसी पोजीशन पे पिवोट को ढूंढे. लेकिन रेक्टेंगुलर केस में जरूरी नहीं है कि इसी पोजीशन पे हो. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट यू शुड डू नाउ. सो वन पिवोट वी हैव फिक्स्ड, 1 1 पोजीशन पे हमने एक पिवोट इसका फिक्स कर दिया था. अभी हमको क्या देखना है, 2 2 पोजीशन देखनी है. एक इटरेशन पूरा हो गया, हमारा जो करंट पिवोट था 1, इसके नीचे हमने 0 बना ली. अभी हमको क्या करना है, हमको जिस जिस जहां पे हमने हमारा पहला पिवोट था उसके आगे की डायगोनल पोजीशन देखनी है. मतलब कि 1 1 पे था तो क्या करना है, 2 2 देखना है. मतलब 1 1 पोजीशन थी तो 1 में भी 1 इनकी ऐड करो और उसके उसके कॉलम नंबर पे भी 1 ऐड करो. 2 2 पोजीशन पे देखो. सो 2 2 पोजीशन क्या है, 2 2 पोजीशन 0 है. ठीक है, तो 0 तो पिवोट हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता पिवोट 0, देखो क्योंकि पिवोट से हमको डिवाइड करना पड़ता है मल्टीप्लायर निकालने के लिए. सो 0 से तो डिवीजन आप कर नहीं सकते. सो 0 कैन नॉट बी पिवोट, रिमेंबर. अभी यदि इस पोजीशन के नीचे जहां पे आप पिवोट ढूंढ रहे हैं, इफ दैट इज 0, तो हमको क्या करना है, उसके नीचे की रोज देखनी है उसी कॉलम में कि नॉन जीरो एंट्री है कि नहीं है. अब देखो इस कंप्लीट कॉलम में कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है. यदि होती तो आप क्या करते, आप टाइप 1 रो ऑपरेशन लगाते, मतलब कि यू हैव टू स्वैप द रोज. और यदि इसके नीचे की रोज में भी 0 नहीं है तो तब क्या करेंगे, वी हैव टू जंप इन द नेक्स्ट कॉलम in the same row. Okay, so now this 3 is pivot. Procedure is clear. यहां पे आप पिवोट ढूंढ रहे हैं, यदि वहां पे पिवोट नहीं है लेकिन उसके नीचे की रोज में है सेम कॉलम में,
then we have to apply type 1. Type 1 means we can swap the rows. और यदि वहां पे भी पिवोट नहीं है नीचे की रोज में, then what we will do, we will jump in the next column. Is it clear? जी सर. Okay, so now this 3 is pivot. So now do the same thing, pivot column, pivot row. Pivot column अभी क्या है, करंट pivot column 3 और करंट pivot row क्या है 2. तो करंट pivot row तक की सारी रो तो ऐसे ही कॉपी कर लो, और हमको करना क्या है कि पिवोट कॉलम में पिवोट के नीचे 0 बनानी है. कैसे बनानी है? बाय फाइंडिंग मल्टीप्लायर्स. मतलब कि एक नंबर निकालना है पहले मल्टीप्लायर, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है करंट पिवोट रो में और नीचे की रोज में ऐड करता जाना है. सो हमको ये 6 को 0 बनाना है. हमको इस 6 को 0 बनाना है यहाँ पे. तो मल्टीप्लायर क्या होगा? -2 -2. -2 को कहां मल्टीप्लाई करोगे? R3 R3 नहीं, R2. सर R3 - 2 R2. हाँ, R3 - 2 R2 ठीक है, लेकिन मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कहाँ करना है? हमेशा याद रखो कि पिवोट रो में. यस. मल्टीप्लाई को कहाँ मल्टीप्लायर को कहाँ मल्टीप्लाई करना है? पिवोट रो. पिवोट रो. और नीचे की रो में ऐड कर देना है मल्टीप्लाई करने के बाद, जहां पे कि आप 0 बना रहे हैं उस रो में. सो 0 0 0 0. अभी करंट पिवोट कहां था? पोजीशन क्या है इसकी? 2 3. ओके, इसके नीचे 0 बन चुके सब. सो 2 और 3. अभी देखो 3 और 4, मतलब कि 2 3 था ना, तो दोनों जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम है दोनों में 1 1 ऐड करो. सो अभी देखना है हमको 3 4. 3 4 पे ऑलरेडी 0 है तो पिवोट हो नहीं सकता. उसके बाद देयर आर नो रोज नो कॉलम, सो फिनिश्ड. सो दिस इज द प्रोसीजर. ये जब प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो हमको मैट्रिक्स का एक फॉर्म मिलता है. दिस फॉर्म इज कॉल्ड REF, रो इक्लियोन फॉर्म. रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड REF, रो इक्लियोन फॉर्म. Clear? Now let us see what is. Let me write this definition. Any matrix A belongs to M cross N. This notation, you are familiar with this notation? R M cross N. That means it is collection of all matrices of order M cross N. देखो, दो नोटेशन हमेशा दोनों ही वेक्टर स्पेस हैं, और हमेशा याद रखो ज्यादा वेक्टर स्पेस के बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने किए हैं. वो हमने इसलिए कराए हैं कि ताकि यू मस्ट हैव फील दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस. केवल Rn तक ही कहानी सीमित नहीं है. Rn के बाद भी बहुत तरह के वेक्टर स्पेसेस हैं जहां मैथमेटिशियंस काम करते हैं. But okay, for computational purpose, there are two main vector spaces in which you will work, and you must know everything about these two vector spaces. One is what? Rn, and another is Rn. I have already defined is collection of all n tuples where each part of the tuple is a real number. And second is what? Rm cross n. This is a collection of all M cross n matrix. ये क्या सेट है? This is a set of all M cross n matrices with real entities, means filled is R. दोनों नोटेशन क्लियर है ना? कोई किसी को डाउट तो नहीं होता इन नोटेशन में?
No, sir. No, sir. Okay, fine. So any matrix A can be reduced in the following form. In the following form by applying elementary row operations of type 1, 2, and 3. What is first property of this form? That the pivots are the first non-zero elements in non-zero rows. मतलब कि मैट्रिक्स की एक ऐसी फॉर्म, व्हाट आई एम राइटिंग ऑन स्लाइड, कि any matrix of order m cross n can be converted in a form that satisfy the following properties. Okay, क्या क्या है पहली प्रॉपर्टी? कि जो नॉन जीरो रोज होंगी उसकी पहली नॉन जीरो एंट्री हमेशा पिवोट होनी चाहिए. अब देखिए ध्यान से कि इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रोज हैं? ऊपर की दोनों रो नॉन जीरो है और नीचे की रो थर्ड रो क्या है? जीरो रो है. जीरो रो मतलब कि सारी एंट्री जीरो. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो रो? एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन जीरो. सो यदि कोई नॉन जीरो रो है मैट्रिक्स में तो वो उसका फर्स्ट एलिमेंट पिवोट होना चाहिए. है हमारी इस फॉर्म में है. Yes, sir. है. ओके. सेकंड, below each pivot all column entries are zero. पिवोट के नीचे उस कॉलम में सारी एंट्री जीरो होंगी. हैं इस फॉर्म में? Yes, sir. There are two Yes, sir. pivots and in these columns all entries below the pivot are zero. Third, each pivot lies to the right of the pivot in the row above. मतलब कि कोई भी पिवोट क्या होगा, कहां पे होगा? ऊपर की रोज में यदि कोई पिवोट है तो उसके राइट में होगा. यू सी हियर दैट यू लुक एट दिस पिवोट 3. ये पिवोट के ऊपर कोई रो है? बोलो यस और नो. इस पिवोट के ऊपर कोई रो है? No, sir. Yes, sir. ये तो सेकंड रो में है ना. दिस पिवोट इज इन सेकंड रो. सो फर्स्ट रो तो है ही ना उसके ऊपर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो इस पिवोट के ऊपर कोई उस रो, और जो इस पिवोट के ऊपर रो है उसमें कोई पिवोट है? Yes, sir. है. वन. तो इस 3 की पोजीशन 1 के राइट में होनी चाहिए हमेशा. है? Yes, sir. Yes, sir. है. Each pivot lies to the right of the pivot in the row above. जो कि पिवोट, कोई भी पिवोट यदि उसके ऊपर की रो में भी पिवोट है तो वो हमेशा उसके राइट में होगा. एंड फोर्थ, all zero rows are below the non-zero rows.
जितने भी नॉन जीरो रोज होंगी वो बॉटम में होंगी। यदि कोई मैट्रिक्स इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन दैट इज कॉल्ड इन रो इक्लियोन फॉर्म। रो इक्लियोन फॉर्म, देखो इक्लियोन का मतलब होता है सीढ़ी। इक्लियोन इज ए लैटिन वर्ड, ओके। इसका मतलब होता है क्या? सीढ़ी। सो मीन्स लेडर टाइप स्ट्रक्चर। सो यू सी पिवोट को पिवोट से मिलाते हुए चलो और जो है देखो देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा हर मैट्रिक्स में जो भी आरईएफ में होगा। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? सीढ़ी जैसा। दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। ये स्ट्रक्चर सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होगा और इस सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर के नीचे सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जी। इसके नीचे जीरो। सारी एंट्रीज क्या होनी जीरो। चाहिए? जीरो। जीरो। Such form of a matrix is called row echelon form. ठीक है? Yes. So this is basic definition. Now, what is RREF? What is row reduced echelon form? रो रिड्यूस्ड इक्लियोन फॉर्म के लिए दो प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं हम इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, all pivots are 1। सारे पिवोट को 1 बना दो। ठीक है? और एक और प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट अबाउ ईच पिवोट ऑल कॉलम एंट्रीज आर 0। पिवोट के नीचे जैसे कॉलम एंट्री 0 थी उसके ऊपर भी 0 बनानी है। और 0 कैसे बनाना है? 0 बनाना तो हमको आता है। वी नो हाउ कैन वी क्रिएट 0 इन पिवोट कॉलम। जहां पे आप जिस रो में आप 0 बना रहे हैं उस रो में क्या करना है? पिवोट रो का मल्टीप्लायर ऐड करना है। इन ए रो वेयर यू आर क्रिएटिंग 0, you add some multiple of pivot row in that row where you are creating 0. And how can you find that multiple? There is a formula for that, that is called multiplier entry to be eliminated divided by pivot. Now देखो यदि ये 6 properties, if these 6 properties are satisfied by a matrix, then it is called in RREF form. And if only 4 are satisfied, those are in blue color, then it is called REF form. So a form that has properties 1 to 4 is called REF, and a form that has properties 1 to 6 is called RREF. फाइन। अभी यहां पे देखो, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं वापस इस फॉर्म को। सो दिस इज REF ऑफ A. If this is my A, this is my matrix A, then REF of A is this matrix. So let me write this 1 3 3 2, 1 3 3 2, and then 0 0 3 3, 0 0 3 3, 0 0 0 0. Pivots are these. ठीक है?
So what is my target now? To convert this into RREF. RREF के लिए क्या करना है? सबसे पहले सारे पिवोट 1 बनाने हैं. अच्छा, पिवोट 1 कैसे बनाएंगे? कौन से टाइप का रो ऑपरेशन लगाएंगे? What type of row operation we have to use here? सपोज करो कि इसको हमको 1 बनाना है, इस पिवोट को, तो क्या करना पड़ेगा इस रो के साथ? सर 1/3 डिवाइड करेंगे तो होगा. 1/3 डिवाइड नहीं करेंगे बेटा, 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बोलो. सॉरी सर, मल्टीप्लाई करेंगे. 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. Yes, सो व्हाट टाइप ऑफ रो ऑपरेशंस यू आर यूजिंग हियर? देखो Type 3. तीन तीन देखो वहीं पे जाओ, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए ना टीचर और स्टूडेंट की, तभी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी. सो व्हेन आई से टाइप रो ऑपरेशन मींस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. हमने अपना फिक्स कर चुके ना, वी हैव फिक्स्ड दैट इस ऑपरेशन को हम टाइप 1 कहेंगे. टाइप 1 मींस एक्सचेंज ऑफ रो. टाइप 2 मींस you are multiplying some row and adding in another row. And type 3 means what? You are multiplying something in some non-zero number in row, any row. हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डिसाइड किया है ना कि इसको हम टाइप 1 बोलेंगे, इसको टाइप 2 और इसको टाइप 3. सो पिवोट को 1 बनाने के लिए हम कौन से टाइप का रो ऑपरेशन लगाएंगे? टाइप 3. टाइप Type 3. 3. यस. सो ये पिवोट तो 1 है ऑलरेडी, हमको कुछ नहीं करना, मींस 1 का ही मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे 1/3 का मल्टीप्लाई करना है, 0 0. सो नाउ ऑल पिवोट्स आर 1. दैट मींस और फिफ्थ प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड. And Yes, sir. Yes. Yes, sir. then sixth one means you have to create 0 in the pivot column above the pivot also. That means you have to create 0 here also. अब ये 0 बनाना है हमको, तो क्या करेंगे? देखो एक्चुअली हमने क्या किया अभी तक, आरईएफ में हम क्या करते हैं, ऊपर से चलते हैं नीचे तक चलते जाते हैं. और अभी क्या करना है हमको आरआरईएफ में हमको पहले आरईएफ निकालना है, उसके बाद सारे पिवोट 1 कर देने हैं, और जो प्रोसीजर आरईएफ निकालने का था उसको वापस कर देना है. मतलब कि वी हैव टू अप्लाई दैट इन द पिवोट कॉलम्स above the pivot also. Means we have to create 0 in the pivot columns above the pivot also. So start from the bottom now. हमको क्या करना है कि नीचे से चलना है. नीचे पहले हम ऊपर से रो कॉपी करते थे, नीचे से रो कॉपी करो. कहां तक करो? करंट पिवोट तक. अभी क्या करना है, यहां पे 0 बनाना है, तो क्या करोगे? व्हाट शुड बी द मल्टीप्लायर? अभी करंट पिवोट क्या है? 1. अब तो सारे पिवोट 1 हो ही गए, तो व्हाट शुड बी द मल्टीप्लायर? एंट्री टू बी एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय पिवोट. भाई इस 1/3. नहीं बेटा, एंट्री टू बी एलिमिनेटेड इज व्हाट? 3. 3 डिवाइडेड बाय पिवोट. पिवोट इज व्हाट? जहां पे 1. जहां पे ये हमारा 3 है, ये किस इस कॉलम में पिवोट क्या है? सब 1. 1. सो 3/1 और नेगेटिव साइन मींस -3. दैट मींस इस रो में आप -3 का मल्टीप्लाई करो. करंट पिवोट तो यही है ना हमारा पिवोट रो. इस Yes, रो sir. में Yes, sir. -3 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ऐड करो. So means R1 minus 3 R2. R1 - 3 R2. यस, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप ये पुरानी जो चीजें हैं ना, जो आपके दिमाग में बसी हुई है, R1 माइनस दिस, R2 माइनस दिस, ये सब इनकी सबकी जरूरत नहीं है बेटा. ठीक है, जब तक आप Yes, इसमें रहोगे ना, यू विल यूज दीज ऑपरेशंस वेरी रैंडमली. Yes, sir. What is in your mind that you apply anyhow these row operations and create 0. But see, there must be a procedure for creating zeros, because just creating 0 on paper and this copy by pen is not your target. Your target is to
instruct your computer that this is the algorithm and follow this algorithm to create REF or RREF. और जब तक स्टेप्स फिक्स नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तो कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्ट करोगे? So everything must be in a algorithmic way so that you can write your own code. So मैं क्या कह रहा हूं कि हमेशा पिवोट देखो, पिवोट रो में ही मल्टीप्लाई करना है, पिवोट रो जो करंट पिवोट रो होगी उसी में मल्टीप्लाई करना है। अभी हमको REF बनाने के लिए हम ऊपर से अपने अपने मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे जाते थे, और एक बार REF आ गया उसके बाद what we have to do, we have to apply type 3 row operation to make all pivots 1, and now you go scan your matrix from bottom to top, bottom से top की तरफ जाओ, और जाते समय क्या करो, आप पिवोट के ऊपर भी जीरो बनाते जाओ। और जीरो बनाओगे कैसे? पिवोट रो में मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लायर का, और जिस रो में जीरो बनानी है उस रो में ऐड कर दो पिवोट रो को। और मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे? एंट्री टू बी एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय पिवोट विद नेगेटिव साइन। इज दिस एल्गोरिथम क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, Yes, sir. sir. Clear. हाँ, तो ये 3 को हमको जीरो बनाना था, तो इस 3 को हम अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, देखो तो पिवोट तो हमारा ये है और पिवोट रो है 2, सो सेकंड रो में मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो, और वो क्या है मल्टीप्लायर, क्या है -3, तो इस रो में -3 से मल्टीप्लाई करो और यहां पे ऐड कर दो, तो क्या आएगा 1 3, यहां पे 0 और यहां पे -1। अब देखो हमारी 6 की 6 प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो कि REF का था, बस अंतर क्या है कि पिवोट 1 हो जाएंगे और पिवोट के ऊपर भी 0 हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम केवल REF ही हमारे लिए सफिशिएंट होती है। ओके, मैक्सिमम टाइम हमको REF ही सफिशिएंट होती है, RREF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आपने पढ़ा है कि मैट्रिक्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? अभी ये नहीं पढ़ाया नो ना? सर। ओके फाइन, ओके ओके। सर आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लाइन। यस प्लीज। सर जो सेकंड रो का जो पिवट है उसके ऊपर और राइट में ही केवल जो मतलब आपने जो लास्ट वाला ऑपरेशन लगाया वो एप्लीकेबल होगा, लेफ्ट में नहीं? लेफ्ट में क्यों होगा बेटे? लेफ्ट में तो यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है ना, वो सारी रो में ही एप्लीकेबल है। देखो इस रो में, तो इस रो को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ऐड किया, लेफ्ट हो या राइट हो कुछ भी जो है ना, सब जगह वैलिड है। ठीक है, सेकंड रो में -3 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है आपका, तो इन दो नंबर पे तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, सेम रहेंगे। ये यही क्वेश्चन था तुम्हारा? आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? इज इट क्लियर? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने सेकंड रो का पिवट ये 2-3 पॉइंट पे 1 है, तो आपने जो मतलब ऑपरेशन भी किया है -3 से इसके एडिशन मल्टीप्लाई, तो इसके ऊपर तो ये 0 बन गया, मतलब 0, और इसके राइट में -1 हुआ, मतलब बट इसके लेफ्ट में 1 3, तो मतलब कंटिन्यू है, तो मतलब एक्चुअली हुआ क्या है ये हम नहीं समझ पाए इसमें, तो 1 में क्या कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है? करना है आपको, हमेशा 1 3, आप मैं वही समझा रहा हूं। आप ये पूछ रहे हैं कि ये 1 3 था यहाँ पे, 1 और 3, और ये 1 और 3 क्यों रह गया यहाँ पे ऐसा कैसा ही? यस आप सर, यही यस पूछ रहे हैं ना? आप यही पूछ रहे हैं? जी सर। हाँ, तो अभी दूसरी रो क्या है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स में सेकंड रो क्या है?
0011, इसमें हमको -3 का मल्टीप्लाई करना है और रो 1 में ऐड कर देना है, तो क्या आएगा 110 -1। मैंने यही तो किया है, कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि ये अनचेंज्ड क्यों रहते हैं, क्योंकि यू आर मल्टीप्लाइंग इन ए पिवोट रो, और इस पिवोट रो में क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे 0 0 है, सो इन दो नंबर पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। हाउएवर जब हम कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमको वो करना है, 1 में से 0 माइनस करना है, 1 - 0 तो 0 ही रहेगा, 3 - 0 तो 3 ही रहेगा। Any other question? Is it clear now? Yes, sir. Now clear. Yes. Any other question? So what we have studied? We have studied row echelon form, row reduced echelon form, and more than that, we have focused on the algorithm, that what algorithm we should use to create REF and RREF. You still have 4 minutes. You may ask questions if you have any. Otherwise, we will meet in evening session from 8 to 9. Any question? Your good name? Actually, sir, we don't know about you. Your good name, sir, please. I am Nutan Kumar Tomar. I said in starting. I am Dr. Nutan Kumar Tomar from Maths Department, IIT Patna. Excuse me, sir. सर शाम की क्लास के रिगार्डिंग सर एक बात कहनी है सर। बोलिए बोलिए। सर 8 to 9 में हम लोग के मतलब जो शेड्यूल में उसमें सर मैथ क्लास की सर 2 लिंक एक्टिव रहती है सर, तो उसमें सर पता नहीं चलता कि किसमें मतलब क्लास चल रही है और कंफ्यूजन हो जाता है सर। तो एक लिंक सर डिलीट उसमें करवा दीजिए या कर दीजिए आप, इससे केवल मतलब कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अभी दोबारा से बताइए, मैं ही नहीं समझा कि प्रॉब्लम क्या है। सर प्रॉब्लम ये है सर कि जो शाम की क्लास होती है मंडे को और थर्सडे को, उसमें शाम की क्लास में सर 2 मैथ लिंक एक्टिव रहती है हम लोग। ऐसा है क्या? यस सर। कोई और है? लिंक 2 एक्टिव है और एक